Hello, Class 12th champions, and a very warm welcome to the first session on a super important chapter of organic chemistry, haloalkanes and haloarenes. Get ready, because we are going to make the fundamentals of this chapter absolutely crystal clear. So, here's our roadmap for today. We're going to cover these 5 key topics. We'll start by exploring the world of halogen compounds to see why they're so important. Then, we'll learn how to identify them, classify them, and name them. And finally, we'll decode the nature of the CX bond, which is really the heart of this chapter. So let's get started with our very first topic. You know, the first question that probably comes to mind is, why do we even need to study this chapter? Is it just something in textbooks? Absolutely not. These halogen compounds are all around us, in our daily lives, in medicines, and believe it or not, even inside our own bodies. Have you ever stopped to think about the chemicals behind the medicines you take, or even the processes happening in your body? Well, let's find out how many of them are our heroes for today, the halogen compounds. Just take a look at this. The powerful antibiotic used to treat typhoid, chloramphenicol, it has chlorine in it. Our own body produces the thyroxine hormone, which contains iodine, and a lack of it leads to goiter. Even the medicine for malaria, chloroquine, and the anesthetic used in surgery, halothane, they are all crucial halogen compounds. See? That's why learning about them is so important. All right, so now that we know why these compounds are so important, let's get down to business and figure out what they are. What's the fundamental difference between them? Let's take a look. According to NCERT, the definition is actually really simple. Just picture a hydrocarbon. It can be a straight-chain allyadic one or a ring-structured aromatic one. Now you just remove one or more hydrogen atoms, and in its place you put a halogen atom. That's fluorine, chlorine, bromine, or iodine. And that's it. You've got your halogen derivative. It's just like a game of musical chairs, really. Hydrogen goes out, halogen comes in. Okay, now this is a really important concept, so pay close attention. The only difference between the two is the type of carbon atom the halogen is attached to. If the halogen is attached to an sp3 hybridized carbon, it's a haloalkane. And if the halogen is attached to an sp2 hybridized carbon, it's a haloarene. That's it. That's the whole difference. The hybridization decides which family it belongs to. Now, the world of these compounds is pretty huge. So to make it easier to understand, we're going to create a kind of family tree for them. In other words, we're going to classify them. Think of it like organizing books in a library to find them easily. So the very first and the easiest classification is based on counting the number of halogen atoms. If there's one halogen atom, we call it mono. If there are 2, it's di. And if there are more than 2, it's a polyhalogen compound. Super simple, right? Now, in this chapter, our main focus is going to be on the monohalo compounds. Let's dive a bit deeper now and classify these monohalo compounds further. And what do you think the basis for this classification is? You guessed it. It's our hero concept again, the hybridization of carbon, whether it's sp3 or sp2. So let's talk about the sp3 guys first. The first category here is alkyl halides. These are further classified into primary, secondary, and tertiary. Don't worry, this is very easy. It all depends on how many other carbon friends the main carbon, the one holding the halogen, is attached to. Check this out. This is a super trick for your exams. If the carbon with the halogen is directly attached to only one other carbon, it's primary, or 1 degree. If it's attached to 2 other carbons, it's secondary, or 2 degree. And if it's attached to 3 other carbons, it's tertiary, or 3 degree. That's all you need to remember. In the sp3 family, we have 2 more special cases, allylic and benzylic. In allylic halides, the halogen is attached to an sp3 carbon that is right next to a carbon-carbon double bond. It's its next-door neighbor. And in benzylic halides, the halogen is on an sp3 carbon that is the next-door neighbor to an aromatic ring. The key word here is next to. Now, this is where you need to be careful. In the last slide, the keyword was next to. Here, the keyword is directly. In allylic and benzylic, the halogen is on an sp3 carbon, which is then attached to the double bond or ring. But in vinylic and aryl halides, the halogen is attached directly to the sp2 carbon of the double bond or the ring itself. This is the main difference between them. Okay, so far, we've learned to identify these compounds and we've classified them. Now it's time for their namkaran, their naming ceremony. Let's learn how to give them a proper name. There are basically 2 systems for naming them. First, we have common names, which are like nicknames. For this, you first name the alkyl group and then just add the word halide. For example, ethyl chloride.
The second is the IUPAC system, which is the international standard. Here, we treat the halogen like a substituent, using a prefix. For instance, chloroethane. We really need to master the IUPAC system. Let's look at this table from NCERT. In the first example, it's a straight chain of 3 carbons, so the common name is N-propyl bromide, where N stands for normal chain. For the IUPAC name, the bromine is on the first carbon, so it's 1-bromopropane. In the second example, there's a branch, so the common name is isopropyl bromide, and the IUPAC name is 2-bromopropane because the bromine is on the second carbon. See how logical it is? And now we've come to the most crucial part of this entire explainer, the bond between carbon and halogen, the CX bond. The nature of this bond holds the secret to all their chemical reactions. If you understand this, the rest of the chapter is gonna be a breeze. So here's the story. Halogen atoms are more electronegative than carbon. You can think of electronegativity as a game of tug-of-war for electrons. Since the halogen is stronger, it pulls the shared electrons more towards itself. This gives the halogen a slight negative charge. We call it delta negative, and the carbon gets a slight positive charge, or delta positive. And because of this charge separation, the CX bond is known as a polar bond. Now take a look at this data. As we go down the group, from fluorine to iodine, the size of the halogen atom gets bigger and bigger. Because of this, the length of the CX bond also increases, and a longer bond is a weaker bond. That's why the energy needed to break the bond, which we call bond enthalpy, decreases. This means it's much easier to break a C-I bond than a C-F bond. All right, let's do a quick recap. These are the most important points from today's session. First, haloalkane means sp3 carbon. Haloarene means sp2 carbon. Second, classification is based on the number of halogens and the type of carbon. Third, make sure the next to versus directly concept is crystal clear. Fourth, the IUPAC name is always a halo-substituted hydrocarbon. And fifth, the CX bond is always polar. Go ahead and take a screenshot of this. It'll be super helpful for revision. And with that, we'll end today's session here. But before you go, I have a question for you. We just learned that in the CX bond, the carbon has a partial positive charge, which means it's electron deficient. So I want you to think, what kind of chemical species would be attracted to attack this poor, electron-deficient carbon atom? We'll discuss the answer in our next session, so think about it and stay curious. हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम है आपका आज के इस सेशन में। हम लोग डाइव करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। डोंट वरी, हम इस चैप्टर को इतना आसान बना देंगे कि आपको सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम थ्योरी में घुसें, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा सवाल। आप सभी ने हैंड सैनिटाइजर तो यूज़ किया ही होगा और घर पर फर्नीचर पॉलिश होते हुए भी देखा होगा। कभी सोचा है कि इन दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ों में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब है दी OH ग्रुप, जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। और यही है हमारे आज के चैप्टर का हीरो। जब ये फंक्शनल ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन से जुड़ जाता है तो वो बन जाता है अल्कोहल। इंटरेस्टिंग है ना? छोटी सी चीज है पर कितनी इंपॉर्टेंट। तो ये रहा आज का हमारा गेम प्लान। सबसे पहले हम अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स की पूरी फैमिली से मिलेंगे। फिर हम देखेंगे कि इनको बनाते कैसे हैं। उसके बाद हम उनकी एसिडिटी कंपेयर करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर एक और ज़रूरी रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, समझेंगे और लास्ट में सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन, सबसे पहले इनकी पहचान कर लेते हैं। देखते हैं कि ये कंपाउंड्स आखिर होते क्या हैं और इनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो। अगर आपके पास एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी एक सिंपल स्ट्रेट कार्बन चेन, और उसमें से आप एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह OH ग्रुप लगा दो, तो बन जाएगा अल्कोहल, जैसे कि मीथेनॉल। लेकिन अगर यही OH ग्रुप सीधा एक एरोमेटिक रिंग, जैसे कि बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, तो उसे कहते हैं फिनॉल। तो मेन फर्क क्या है कार्बन चेन का? एक एलिफैटिक है और दूसरा एरोमेटिक। क्लियर? अब अल्कोहल्स को भी हम क्लासिफाई करते हैं। पहला टाइप है प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ता है जो आगे सिर्फ एक और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो। ये जो स्ट्रक्चर में R है, इसका मतलब है बाकी की कार्बन चेन। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल्स। अब आप लोग गैस कर ही सकते हो, इसमें OH ग्रुप उस कार्बन पर लगा होता है जो आगे 2 और कार्बन एटम से जुड़ा हो। यहाँ R और R' से उन 2 चेन्स को दिखाया गया है।
और आखिर में आते हैं टर्शरी या 3 डिग्री अल्कोहल्स। इस केस में OH वाला कार्बन 3 दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होता है। एक बात दिमाग में बिठा लो, ये क्लासिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के सारे रिएक्शंस इसी पर डिपेंड करेंगे। चलिए अब हमारे अगले सेक्शन पर चलते हैं, प्रेपरेशन। अब हम सीखेंगे कि अल्कोहल्स को बनाया कैसे जाता है। वैसे तो काफ़ी मेथड्स हैं, पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस पर फोकस करेंगे। ये मेथड है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, पर काम बहुत आसान है। इसका मतलब है कि हम एक एल्कीन के डबल बॉन्ड पर वाटर ऐड कर रहे हैं एक एसिड की मौजूदगी में। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जब ईथेन में H2O ऐड करते हैं H+ साइंस की प्रेजेंस में, तो हमें मिलता है इथेनॉल, जो कि एक अल्कोहल है। तो रिएक्शन तो सीधा साधा लग रहा है ना? पर आखिर ये होता कैसे है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसका मैकेनिज्म क्या है? देखो, मैकेनिज्म के नाम से कभी डरना नहीं है। वो बस सिंपल लॉजिकल स्टेप्स की एक सीरीज होती है। ये रिएक्शन 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, प्रोटोनेशन। एसिड से निकला H+ एल्कीन के डबल बॉन्ड पर अटैक करता है, जिससे एक कार्बोकटायन बन जाता है, यानी एक कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। स्टेप 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब एक वाटर मॉलिक्यूल उस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करता है। और आखिर में स्टेप 3, डीप्रोटोनेशन। एक प्रोटॉन निकल जाता है, एसिड कैटलिस्ट वापस मिल जाता है और हमें मिलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, अल्कोहल। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक और डीप्रोटोनेशन। सिंपल। चलो अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बोर्ड एग्जाम्स का फेवरेट है, एसिडिटी। यहां हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स की टक्कर करवाएंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है। ये एक क्लासिक सवाल है, तो ध्यान से सुनना। पहले ये समझो कि अल्कोहल्स एसिडिक होते ही क्यों हैं। इसका रीजन है OH बॉन्ड का पोलर नेचर। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। इससे हाइड्रोजन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो H+ आयन बनकर निकलने के लिए रेडी हो जाता है। यही उनकी एसिडिटी का सोर्स है। तो अब कंपैरिजन करते हैं। फिनॉल में OH ग्रुप एक बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है और ये रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होती है, मतलब ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचती है। इससे ऑक्सीजन की हाइड्रोजन पर पकड़ कमजोर हो जाती है और H+ का निकलना आसान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अल्कोहल में जो अल्काइल ग्रुप्स जैसे -CH3 लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। तो H+ को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इस लड़ाई का विनर कौन हुआ? फिनॉल। और ये बात याद रखना, फिनॉल सिर्फ अल्कोहल से नहीं बल्कि पानी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है रेजोनेंस। जब फिनॉल एक प्रोटॉन लूज करता है, तो जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस की वजह से बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और केमिस्ट्री का गोल्डन रूल है, कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। चलिए अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी अल्कोहल मॉलिक्यूल से पानी का निकालना। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब हम एथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर हीट करते हैं, तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करके इथीन बना देता है, जो कि एक एल्कीन है। इस रिएक्शन में टेम्परेचर बहुत क्रूशियल है। ये वैल्यू 443 केल्विन, याद रखना। और हाँ, इसका भी एक मैकेनिज्म है। और गेस करो क्या? ये हाइड्रेशन के मैकेनिज्म का बिल्कुल उल्टा है। स्टेप 1 में ऑक्सीजन एसिड से एक प्रोटॉन ले लेता है। स्टेप 2 में CO बॉन्ड टूटता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और एक कार्बोकैटायन बन जाता है। ये सबसे स्लो स्टेप है, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और स्टेप 3 में पास वाले कार्बन से एक प्रोटॉन निकल जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है और हमें मिल जाता है इथीन। देखा, हाइड्रेशन का प्रोसेस बस रिवर्स में। अब एक और की कॉन्सेप्ट, किस तरह का अल्कोहल सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा? ऑर्डर है टर्शरी सबसे फास्ट, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ऐसा क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का हीरो कौन है? कार्बोकेटायन। और हमें पता है कि टर्शरी कार्बोकेटायंस सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए टर्शरी अल्कोहल्स सबसे तेजी से डिहाइड्रेट होते हैं। वाह, हमने काफी कुछ कवर कर लिया। तो अब टाइम है एक क्विक रिकैप का। चलो फटाफट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये है आपके की टेकअवेज। नंबर 1, अल्कोहल्स और फिनॉल्स में OH ग्रुप होता है। नंबर 2, अल्कोहल्स को हम एल्कीन्स में पानी डालकर बना सकते हैं। नंबर 3,
फिनॉल्स हमेशा अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, रेजोनेंस के कारण। नंबर 4, अल्कोहल्स एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट होकर एल्कीन्स बनाते हैं। और नंबर 5, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। बस ये 5 पॉइंट्स इस चैप्टर की नींव है। और इससे पहले कि हम खत्म करें, मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो ये दिखाती है कि ये कंपाउंड्स हमारी डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये कोट आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से है। ये कहता है कि अगर OH कंपाउंड्स ना होते तो पेपर भी ना होता। जरा सोचो, ना किताबें, ना मैगजीन्स, ना करेंसी नोट्स, दुनिया बिल्कुल अलग होती। इससे पता चलता है कि जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो वो हमारे आसपास हर चीज का बेस है। तो इस सेशन को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि 443 केल्विन पे एथेनॉल डिहाइड्रेट होकर ईथीन बनाता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर हम यही रिएक्शन एक कम टेम्परेचर पर करें तो क्या होगा? इसके बारे में सोचना और इसका जवाब अपनी टेक्स्ट बुक में जरूर ढूंढना। ऑल द बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए एंड कीप लर्निंग। हेलो क्लास 12 के चैंपियंस, कैसे हो सब? चलो आज शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाम सुन के डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, ट्रस्ट मी, ये चैप्टर जितना जरूरी है ना उतना ही मजेदार भी है। तो चलो पहले स्टेप से शुरू करते हैं, यानी इनकी पहचान से। तो सोचो, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 3 अलग अलग नाम, पर इन तीनों में आखिर कनेक्शन क्या है? कौन है वो एक चीज जो इन सबको जोड़े रखती है? इस पूरे चैप्टर का, इस पूरी कहानी का असली हीरो कौन है? कोई है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके ही आगे पीछे सारी कहानी चलने वाली है। कुछ आइडिया? गेस करो। और हमारा हीरो है तड़ा द कार्बोनिल ग्रुप। हाँ, यही है वो। देखो स्क्रीन पे, एक कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है, बस इतना सा। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप ही इस पूरे परिवार का, इस पूरी फैमिली का मुखिया है, स्टार प्लेयर है। यही है वो कॉमन थ्रेड जो इन सब कंपाउंड्स को एक साथ बांध के रखता है। सिंपल है ना? तो इसीलिए चलो इन सबको एक नाम देते हैं, द कार्बोनिल परिवार, यानी कार्बोनिल फैमिली। बिल्कुल एक बॉलीवुड मूवी की तरह। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सब इसी परिवार के बच्चे हैं, मेंबर्स है। तो चलो आज इस परिवार के हर एक मेंबर से मिलते हैं और उन्हें पहचानना सीखते हैं। रेडी? ओके, तो परिवार में सबसे पहले मिलते हैं 2 भाइयों से, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। देखो, नाम थोड़े अलग अलग लग रहे हैं ना, पर बिलीव मी, इनके स्ट्रक्चर में जो फर्क है ना, वो इतना छोटा सा है कि आप हैरान हो जाओगे। चलो देखते हैं क्या है वो फर्क। अब जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखो। देखा, दोनों में हीरो तो सेम है, हमारा कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि एल्डिहाइड में उस कार्बोनिल कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, मस्ट है। जबकि कीटोन में क्या होता है, उस कार्बन के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट, दोनों तरफ कार्बन की चेन्स होती हैं। मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं, सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम का खेल है दोस्तों। एक H लगा तो एल्डिहाइड, H हटा तो कीटोन, बस पूरी आइडेंटिटी बदल जाती है। और पता है सबसे मजेदार बात, ये एल्डिहाइड सिर्फ कॉपी किताब में नहीं है, ये हमारी लाइफ में है। कभी सोचा है वनीला आइसक्रीम की वो मीठी मीठी खुशबू कहाँ से आती है? वो आती है एक एल्डिहाइड से जिसका नाम है वनिलिन। और वो सिनेमन रोल या दालचीनी की आने वाली तेज सी खुशबू, वो भी एक एल्डिहाइड सिनेमल्डिहाइड की वजह से है। तो अगली बार जब आइसक्रीम खाओ ना, तो एल्डिहाइड्स को थैंक यू बोलना। तो एल्डिहाइड्स तो खुशबू दे रहे हैं, कीटोन्स क्या कर रहे हैं? चलो उनसे भी मिलते हैं। सबसे कॉमन कीटोन जो आप सब जानते हो वो है एसीटोन। हाँ बिल्कुल सही, नेल पॉलिश रिमूवर। ये एक फंटास्टिक सॉल्वेंट है, मतलब चीज़ों को घोलने में उस्ताद है, इसीलिए इंडस्ट्रीज में इसका बहुत यूज होता है। तो देखा, ये पूरा कार्बोनाइल परिवार हमारी लाइफ के हर कोने में है। ओके, तो पहचान तो हो गई, अब आती है नामकरण की बारी। देखो, जैसे हर फैमिली में होता है ना, एक होता है घर का प्यार का नाम, पिंटू, गुड्डू, और एक होता है स्कूल का ऑफिशियल नाम। बिल्कुल वैसे ही इन कंपाउंड्स के भी 2 नाम होते हैं, एक कॉमन नाम और एक ऑफिशियल, जिसे हम कहते हैं IUPAC नाम। तो ये कॉमन नेम्स यानी घर के नाम कैसे रखे गए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अक्सर वहां से आते हैं जहां से कंपाउंड पहली बार मिला था। जैसे लाल चींटियों को लैटिन में कहते हैं फॉर्माइका, उनसे जो एसिड मिला उसका नाम रख दिया फॉर्मैक एसिड, और उसी एसिड से जो एल्डिहाइड बना उसका नाम हो गया फॉर्मैल्डिहाइड। सिंपल राइट? सोर्स से नाम ले लिया। और हाँ, इन कॉमन नेम्स में अगर कोई ब्रांच लगी हो तो उसकी पोजीशन बताने के लिए हम ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, एंड सो ऑन।
लेकिन एक बात गांठ बांध लो, घर का नाम घर तक ठीक है, पर एग्जाम्स में कौन सा नाम चलेगा? ऑफिशियल नाम, यानी IUPAC नेम्स। ये आलतू फालतू नहीं, पूरी दुनिया में सेम होते हैं, यूनिवर्सल हैं। तो अगर मार्क्स चाहिए तो पूरा फोकस अब IUPAC रूल्स पर। चलो ध्यान से समझो। और डरना बिल्कुल नहीं, IUPAC रूल सुपर सिंपल हैं। देखो इस टेबल को, करना क्या है, जो भी पेरेंट एल्केन है जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, उसके नाम के एंड से ई को हटा दो। बस ई को बाय बाय बोल दो। अगर कंपाउंड एल्डिहाइड है तो एंड में लगा दो एल, AL, तो पेंटेन बन गया पेंटेनल। और अगर कीटोन है तो एंड में लगा दो वोन, ONE, तो पेंटेन बन गया पेंटेन 2 वोन। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट? अच्छा, कीटोन्स में एक छोटा सा ट्विस्ट है, नंबरिंग का रूल। पहले तो सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढ लो जिसमें हमारा हीरो C+O ग्रुप हो। फिर काउंटिंग वहां से शुरू करो जहां से ये ग्रुप सबसे पास हो। मतलब इसको VIP ट्रीटमेंट देनी है, सबसे छोटा नंबर देना है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी सब रूल्स सेम टू सेम। और अब आती है गुड न्यूज, एल्डिहाइड्स के केस में लाइफ इज सॉर्टेड, बिल्कुल आसान, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के कोने में एंड में होता है, तो नंबरिंग हमेशा ऑलवेज उसी कार्बन से शुरू होगी, वो हमेशा कार्बन नंबर 1 ही होगा। तो टेंशन ही खत्म, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। मजा आ गया ना? चलो, अब तक हम 2 भाइयों से मिल लिए, अब वक्त है इस कार्बोनिल परिवार के एक और बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़े सीरियस टाइप मेंबर से मिलने का, और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, पर दिल में, इनकी बुनियाद में वही हमारा हीरो कार्बोनिल ग्रुप ही बैठा है। तो आखिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या? देखो, इसके नाम में ही इसका राज छुपा है। कार्बो फ्रॉम कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल फ्रॉम हाइड्रोक्सिल। सिंपल। जब हमारे कार्बोनिल ग्रुप CO से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH आकर जुड़ जाता है, तो जो नया ग्रुप बनता है COOH, उसे ही हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, और यही है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। और इनके कॉमन नेम्स की कहानी भी वैसी ही है, जहां से मिले वैसा नाम। जैसे हमने पहले देखा था, फॉर्मिक एसिड लाल चींटियां यानी फॉर्माइका से, सिरका जिसे इंग्लिश में विनेगर और लैटिन में एसिटम कहते हैं, उससे मिला एसिटिक एसिड, और खराब मक्खन यानी रैंसिड बटर जिसको लैटिन में ब्यूटेरम कहते हैं, उससे मिला ब्यूटेरिक एसिड। है ना कितना इंटरेस्टिंग, नेचर से सीधा नाम उठा लिया। और IUPAC नेमिंग, डोंट वरी, पैटर्न बिल्कुल सेम है, वही करना है। पेरेंट एल्केन लो, उसके एंड से E हटाओ और इस बार एंड में लगा दो ओइक एसिड, OIC एसिड, तो इथेन बन गया इथेनोइक एसिड, ब्यूटेन बन गया ब्यूटेनोइक एसिड। एकदम कंसिस्टेंट पैटर्न है, याद रखना बहुत आसान है। तो फिर से वही सवाल, सर ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं, कहाँ काम आएगा? बिल्कुल सही सवाल है। चलो अब देखते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ छुपे बैठे हैं। अरे, इनकी इंपॉर्टेंस तो हर जगह है। आपके किचन में जो सिरका रखा है ना, जिसे आप चाउमीन में डालते हो, वो और कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पानी मिला हुआ एथेनोइक एसिड है। जिन साबुन और डिटर्जेंट से आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, वो भी हायर कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं। और सुनो, जो नायलॉन के कपड़े पहनते हो, उसमें से एक टाइप नायलॉन 66 एडिपिक एसिड से बनता है। यहाँ तक कि परफ्यूम्स और फूड प्रिजर्वेटिव्स में भी ये एसिड्स या इनके डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, सोच सकते हो। चलो भाई, तो आज हमने इस पूरे कार्बोनिल परिवार से अच्छी खासी जान पहचान कर ली, लेकिन जाने से पहले एक फाइनल सुपर फास्ट रिकैप तो बनता है, ताकि सारी बातें दिमाग में एकदम परमानेंटली सेव हो जाए। तो आज की कहानी का समरी क्या है, एक लाइन में सुनो। हीरो कौन? कार्बोनिल ग्रुप यानी C+O। अगर इसके कार्बन के पास एक H है तो वो है एल्डिहाइड, नाम के एंड में आएगा एल। अगर कार्बन के दोनों तरफ कार्बन ही कार्बन है तो वो है कीटोन, नाम के एंड में आएगा ओन। और अगर कार्बन के साथ एक OH ग्रुप भी है तो वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और नाम के एंड में आएगा ओइक एसिड। बस इतना याद रख लिया तो पहचान पक्की। तो कंग्रेचुलेशंस, आज आपने इस पूरे परिवार को पहचानना सीख लिया। अब आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को भीड़ में भी पहचान लोगे। लेकिन अब एक नया सवाल, जब इन सब के दिल में एक ही हीरो कार्बोनाइल ग्रुप बैठा है, तो क्या इनके कामकाज, इनके रिएक्शंस वो भी एक जैसे होंगे या अलग अलग? सोचो इस बारे में। इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहो। हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो चलो आज एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अमीन्स, उसको बिल्कुल मक्खन बना देते हैं। अक्सर आप लोगों को लगता होगा यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स कितने ड्राई हैं, सिर्फ थ्योरी ही थ्योरी है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।
आज हम जिस केमिकल फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं ना, वो आपकी डेली लाइफ में हर जगह है। लाइफ सेविंग ड्रग से लेकर आपके कपड़ों के रंग तक, सीरियसली हर जगह। तो कभी सोचा है ये केमिकल्स आखिर मिलते कहाँ हैं? वेल, आई कैन बेट ये आपकी सोच से भी ज्यादा पास हैं। चलो देखते हैं कहाँ। जरा सोचो, जब आप कभी डेंटिस्ट के पास जाते हो तो जो एनेस्थेटिक यूज होता है नोवोकेन, उसमें अमीन्स हैं। कभी एलर्जी हुई और बेनाड्रिल ली, हाँ उसमें भी अमीन्स हैं। अरे यहां तक कि आपके कपड़ों को जो इतने सुंदर ब्राइट कलर्स मिलते हैं ना, वो भी डाइस की वजह से हैं, जिनका मेन हीरो अमीन्स ही हैं। और ये सारे एग्जाम्पल्स कहीं बाहर से नहीं, सीधे आपकी एनसीईआरटी बुक से हैं। तो समझ जाओ ये चैप्टर कितना रेलेवेंट है। तो ठीक है, ये इतनी ज़रूरी है, पर ये अमेजिंग कंपाउंड्स आते कहाँ से हैं? इनका परिवार कौन है? लेट्स मीट द हेड ऑफ द फैमिली, द वन एंड ओनली अमोनिया। तो आखिर ये अमीन्स हैं क्या? देखो, एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। मान लो अमोनिया यानी NH3 एक पेरेंट मॉलिक्यूल है, ठीक, जिसके पास 3 बच्चे हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर आप इनमें से 1, 2 या तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर उनकी जगह कोई नया मेंबर, जैसे कोई अल्काइल ग्रुप CH3 या कोई आराइल ग्रुप बेंजीन रिंग वाला लगा दो, तो जो नया कंपाउंड बनेगा ना, बस वही अमीन कहलाता है। सिंपल। इट्स लाइक फैमिली से पुराने मेंबर्स गए और नए आ गए। और देखो, जैसा पेरेंट वैसे ही बच्चे। बिल्कुल अमोनिया की तरह अमीन्स का स्ट्रक्चर भी पिरामिडल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान से सुनो, नाइट्रोजन एटम के ऊपर हमेशा एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी एक लोन पेयर बैठा रहता है। और यही लोन पेयर, यही इनकी सारी शरारतों का, सारी केमिकल रिएक्शंस का राज है। ओके, अब जैसे एक फैमिली में अलग अलग मेंबर्स होते हैं, वैसे ही अमीन्स के भी टाइप्स हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, एकदम, बस ध्यान से सुनो। चलो देखते हैं इनके टाइप्स को। यहाँ टेबल पर देखो, अगर अमोनिया से सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ है, सिर्फ एक, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन। फॉर्मूला क्या बना? RNH2, सिंपल। अब अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तो वो क्या हो गया? ऑब्वियसली सेकेंडरी या 2 डिग्री अमीन, R2NH। और अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया तो वो बन जाता है टर्शरी या 3 डिग्री अमीन, R3N। देखा कितना इजी है, बस काउंटिंग करनी है। ऑलराइट, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्से पर, एक ऐसी मैजिक रिएक्शन जो एरोमेटिक अमीन्स को सुपर यूजफुल बनाती है। इसको तो स्टार मार्क कर लो, cause ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नाम है डायाज़ोथिजेशन। प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम एक प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लेते हैं, फॉर एग्जांपल एनालीन, फिर उससे नाइट्रस एसिड से रिएक्ट कराते हैं। और यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द ट्रिक। ये पूरी रिएक्शन बहुत ही ठंडे में, बहुत लो टेम्परेचर पर होती है, 273 से 278 केल्विन, यानी 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर कंडीशन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए VVIP है। इसको नोट कर लो, और इससे हमें मिलता है एक सुपरस्टार, बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट। अब ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है ना, ये कोई एनवाई सा कंपाउंड नहीं है, ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस की दुनिया का हीरो है। चलो देखते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा सुपरस्टार क्यों है। तो ये हैं अरेनिया डाइजोनियम सॉल्ट्स, जिनका जनरल फॉर्मूला है ArN2+X-। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो N2+ ग्रुप है ना, वो एक बहुत ही अच्छा, एन एक्सेलेंट लीविंग ग्रुप है। मतलब वो इतना बेचैन रहता है मॉलिक्यूल से निकलने के लिए कि वो फटाक से नाइट्रोजन गैस बनकर उड़ जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आकर बैठ जाता है। और यही चीज़ इसको इतना वैल्यूएबल बनाती है। और इसी खास प्रॉपर्टी का यूज होता है 2 बहुत फेमस नेम्ड रिएक्शंस में, जहां स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सैनमायर रिएक्शन और गैटोमैन रिएक्शन। देखो, दोनों में काम एक ही हो रहा है, डाइजोनियम ग्रुप को -Cl या -Br से रिप्लेस कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि सैनमायर रिएक्शन में हम कॉपर का सॉल्ट यूज करते हैं, जैसे CuCl या CuBr, जबकि गैटोमैन रिएक्शन में हम सिर्फ कॉपर पाउडर और उसके साथ हैलोजन एसिड यूज करते हैं। बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन मार्क्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये डाइजोनियम सॉल्ट्स इतने ऑसम क्यों हैं। क्योंकि ये एक मास्टर की तरह हैं। इनकी मदद से हम बेंजीन रिंग पर वो ग्रुप्स भी आसानी से लगा सकते हैं जिन्हें डायरेक्टली लगाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे -F, -I या -CN ग्रुप। इसीलिए तो कहते हैं इनको ऑर्गेनिक सिंथेसिस के सुपरस्टार। चलो, अब टाइम है एक रैपिड फायर राउंड का। 30 सेकंड्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। रेडी हो? लेट्स गो। पॉइंट नंबर 1,
अमाइंस क्या है? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, अमोनिया के डेरिवेटिव्स। फैंटास्टिक। ओके, पॉइंट नंबर 2, कितने टाइप के होते हैं? 3। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड। परफेक्ट। पॉइंट नंबर 3, वो मैजिक रिएक्शन का नाम क्या था? डायजोटाइजेशन। वेरी गुड। और उसकी सबसे जरूरी कंडीशन क्या थी? द टेम्परेचर। कितना? 273 टू 278 केल्विन। भूलना मत। और आखिरी पॉइंट, सिंथेसिस का सुपरस्टार कौन है? कम ऑन। यस, डाइजोनियम सॉल्ट्स, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। एक्सीलेंट वर्क। अब आपको इस चैप्टर के बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं। तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। इस स्लाइड पे जो क्वेश्चन है ना, उसके बारे में जरूर सोचना। द पावर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट से और क्या क्या बनाया जा सकता है, थोड़ा रिसर्च करना। कीप रिवाइजिंग एंड ऑलवेज ऑलवेज स्टे क्यूरियस। हेलो मेरे क्लास 12 के दोस्तों, वेलकम। आज हम केमिस्ट्री के एक सुपर इंपॉर्टेंट और आई थिंक सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर को डिकोड करने वाले हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। आई नो चैप्टर थोड़ा लंबा लग सकता है, बट आई प्रॉमिस इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलो, let's start this journey into the chemistry of life. So, let's kick things off with a pretty amazing question. Just think about it for a second. On one hand, you have non-living atoms and molecules, just stuff. And on the other hand, there's us, a complete living system that can grow, sustain itself, and even reproduce. How does that connection even happen? It's all built from the same non-living stuff. It's kind of mind-blowing, isn't it? Well, the answer to that huge question is hidden in these things we call biomolecules. We're talking about carbohydrates, proteins, nucleic acids. These are the complex molecules that interact with each other to create what we call the molecular logic of life. It's basically the chemical language of life itself. The cello, let's get decoding. All right, first up on our list, carbohydrates. I mean, whenever you talk about energy, carbohydrates are the first thing that come to mind, right? Roti, rice, sugar. All of it is part of this family. They are, without a doubt, the primary fuel for our bodies. Okay, pay close attention here, because this is where a lot of students get confused. People used to think carbohydrates were just hydrates of carbon, fitting this general formula. And for something like glucose, it works. C6H12O6 fits perfectly as C6H2O6. But here's the catch. Acetic acid, which is basically vinegar, also fits the formula as C2H2O2. But is it a carbohydrate? Absolutely not. So that old definition failed. The modern definition, the one you need to remember for your exams, is this. They are optically active polyhydroxyaldehydes or ketones. You got to remember this one. So how do we classify these guys? It's actually pretty simple if you think of it like a necklace, a mala. The single bead, the moti, that's your monosaccharide. It's the simplest unit, you can't break it down any further. Glucose is a perfect example. Now, if you link 2 to 10 of those beads together, you get an oligosaccharide. And if you link thousands of them together into a long chain, you get a polysaccharide. The whole necklace, like starch. Simple, right? Just remember the bead in the necklace analogy. All right, guys, screenshot this in your brain, because this table is straight from your NCERT, and it is a gold mine for questions. It shows how we name monosaccharides. It's a two-step process. First, count the carbons. 3 carbons? It's a triose. 6 carbons? It's a hexose. Second, look at the functional group. Is it an aldehyde? Add aldo to the front. Is it a ketone? Add keto. So a 6-carbon sugar with an aldehyde group is an aldohexose, like glucose. Easy. Just remember, carbon count and functional group. Okay, so we've got our energy source sorted with carbs. But what about, building the actual body? For that, we need to call in the superworkers of our body, the proteins. Everything from milk, cheese, lentils, meat, they're all packed with protein. Growth, maintenance, structure, literally everything depends on them. They are our body's master builders. So what exactly are proteins at their core? Well, fundamentally, they are polymers of alpha amino acids. That just means you take a whole bunch of these alpha amino acid units, link them together in a long chain, and boom, you've got a protein. And even the name tells you how important they are. It comes from the Greek word proteos, which means primary or of prime importance. The name says it all. Now, this is where it gets really cool. Proteins have 4 different levels of structure. To make it super simple, just imagine that amino acids are like the letters of the alphabet.
The first level, the primary structure, is just the specific sequence of those letters in a straight line. This sequence is what determines which protein is going to be made. Okay, so we have our sequence of letters, now what? Well, that straight line starts to fold and twist. This is the secondary structure, and it mainly happens in two ways. First, you have the alpha helix, which coils up just like an old-school telephone cord or a spring. And second, you have the beta-pleated sheet. Imagine folding a piece of paper back and forth to make a fan. It's exactly like that. But wait, there's more. This folded structure then folds up even further into a really complex, specific 3D shape. And this is the tertiary structure. And guys, this is the magic moment. This is where the protein gets its actual function, its superpower. Until a protein is folded into its correct 3D shape, it's biologically useless. So that 3D fold, it's everything. So if the 3D shape gives the protein its power, what happens if we mess up that shape? Well, if you do something like change the temperature or the pH, the delicate bonds holding the folds together break. The protein unravels, it loses its 3D shape, and it loses its biological activity. This whole process is called denaturation. And here's a key point to remember. The primary structure, the actual sequence of amino acids, stays the same. It's just the folding that gets ruined. Need a perfect, real-world example? You see it every single time you boil an egg. That clear, liquidy egg white is just protein and water. When you heat it up, you denature those proteins. They unfold, get all tangled up with each other, and turn into that solid, opaque white. That's coagulation, and it's denaturation happening right there in your kitchen. All right, so we've got our fuel from carbohydrates and our building materials from proteins. But who's the manager? Who's in charge of this whole operation? Well, that brings us to what might be the most fascinating part of this chapter, nucleic acids. Think of them as the secret keepers, the holders of the blueprint of life itself. You know, we've all heard people say, you have your mother's eyes, or you have your father's height. How do these traits, what we call heredity, get passed down from one generation to the next? The answer lies deep inside the nucleus of our cells, in structures called chromosomes. And what are chromosomes made of? You guessed it, proteins and, our star of the show, nucleic acids. Okay, before we dive deeper into nucleic acids, let's clear up two very similar sounding words that cause a lot of confusion. First up, we have nucleoside. It's super simple. It's made of just two things, a pentose sugar and a nitrogenous base. Sugar plus base equals nucleoside. That's it. Got it? Now for nucleotide, you take the nucleoside we just talked about, that sugar-base combo, and you add just one more thing to it, a phosphate group. So a nucleotide is simply a nucleoside plus a phosphate. This small difference is a classic exam question, so make absolutely sure you lock this in your memory. To understand the jobs of DNA and RNA, let's use a really simple analogy. Think of your DNA as a massive master cookbook. It contains every single recipe, or what we call genes, for making every single dish or protein that your body will ever need. And this incredibly precious cookbook is kept locked away for safekeeping in the library, which is the nucleus of the cell. Now, you wouldn't take that priceless master cookbook into the messy kitchen, would you? Of course not. You'd make a photocopy of the one recipe you need. Well, that photocopy, that's RNA. The RNA takes that single recipe from the library, the nucleus, out into the kitchen, the cytoplasm, where the actual dish, the protein, gets made. So you see, DNA stores the information and RNA carries the instructions to build things. And here it is, the famous double helix structure of DNA, figured out by Watson and Crick. So, what are we looking at? You've got two long strands twisted around each other like a spiral staircase. They're held together by hydrogen bonds. But the most important part, the absolute golden rule of DNA, is the base pairing. Adenine always pairs with thymine, A goes with T, and guanine always pairs with cytosine, G goes with C. This rule is non-negotiable. It's the secret to life. Whew! Okay, we have covered a lot of ground. We've met the three heroes of this chapter: carbohydrates, proteins, and nucleic acids. So before we wrap this up, let's do a super fast recap to make sure the most important points really stick. So what are the key takeaways? Let's go! Carbohydrates are your energy source. Proteins are the bodybuilders, and remember, their 3D structure determines their function. Denaturation is when that crucial structure gets destroyed. Nucleic acids are the genetic material. DNA is the master blueprint, and RNA is the messenger. And finally, that critical difference? A nucleotide has a phosphate group. Please do not forget these points.
You know, there's this quote right in your NCERT book that just perfectly sums up this entire chapter. It says that life itself is the result of thousands of chemical reactions happening in our bodies in perfect harmony and synchronization. It's not just random chaos, it's a beautiful, complex chemical dance. So I want to leave you with this final thought. The next time you sit down for a meal, I want you to look at your plate, see the carbohydrates in the roti, the proteins in the dal, and just remember, you're not just filling your stomach. You are literally supplying the raw materials, the essential building blocks for the incredible chemical factory that is constantly running inside of you. How amazing is that? Keep that curiosity alive.